Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So only 6 days or 5 days are left for IBPS PO Prim examination for many candidates. One third of our candidates are already through with first phase of examination, that is Prim examination, and a mixed response is there. Overall attempts are less than last year, and some candidates found that exam as tough, moderate, or easy. Now we have to focus on study instead of going deep into analysis of previous batches. As exam is ahead of us, we have to concentrate on systematic study, sustained study, so that we become victorious in this phase of examination and we get a chance to sit in main examination. Now, as you are getting more time than the people those have already appeared for 3rd October, so you need not have unnecessary tension about your preparation. Had your examination on 3rd, you might have already appeared with this level of preparation. So whatever time you are getting is additional time. So first thing is remain cool. Some candidates get over panicky how we will manage, how we will prepare for the exam. First, an important aspect is remaining cool. Then make a timetable and implementing it. So these days you should not overplay with mock test. Only 3 mock tests you will attempt from today till your examination. So if you have attempted the mock test yesterday, you need not attempt it today. But if you have not attempted any mock test yesterday, you must attempt 1 mock test today. Link of very good mock test is available in description and comment column. This mock test I am recommending to all candidates, and thousands of our subscribers have already subscribed it. If you have not subscribed till now, subscribe it today. It is going to help you tremendously in your preparation. So after attempting the mock test, you will come to know where you are lacking. I am emphasizing time and again, this is the time where you will only focus your time on your weak areas. In these limited days, you cannot cover the entire syllabus, and there is no need to cover the entire syllabus. Attempt a mock test, see the solution, see the analysis, find out the areas where still you are lacking, note down these topics in your diary, and in a systematic manner, read the concepts from basic textbook. Another important thing is English plays the crucial role. So try to focus more time on English, because in case of most people, quant and reasoning is good, but they miss in English. So if you improve English, you can have lead over others. How to improve English? Already videos are there. Now we are tackling one topic every day. Yesterday I covered general awareness. Today I will cover another topic, and most probably English. How to improve English. So watch that video also and follow those tips. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब जिन लोगों का 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को प्रेम का एग्जाम है, उनके सामने अब बहुत ही गिने चुने दिन रह गए हैं, 5 या 6 दिन. पर सबसे पहला काम ये है कि जो हम ये तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमें किसी तरह की टेंशन नहीं रखनी है अपने ऊपर. क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि आप एक एडवांटेज पे हैं. ऑलरेडी जिन लोगों का 3 तारीख को हो चुका है,
उनके अलावा आपको एडिशनल डेज ही मिल रहे हैं। तो यदि आपका 3 को एग्ज़ाम होता तो आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी से देते। तो इसलिए जो भी अब आपकी तैयारी है उस पर टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पूरी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। सिर्फ अपने पर संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। और इन दिनों को यदि आप सिस्टमेटिक वे से इस्तेमाल करते हैं और प्लान वे से इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐड ऑन मार्क्स ले सकते हैं। अब आप सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल पे फोकस करिए और लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए। आपको मैंने एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट सजेस्ट किया है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में। अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हजारों हमारे सब्सक्राइबर्स ने इसको सब्सक्राइब किया है और उनको फ़ायदा हुआ। कुछ ने तो कल कमेंट में ये कहा है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आ गए। तो अच्छे मॉक टेस्ट का हमेशा फ़ायदा होता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दिया है, वहाँ से लिंक यूज़ करके इसको आप ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अगले बचे हुए 5-6 दिन में बहुत ज़्यादा मॉक हमें अटैम्प्ट नहीं करना है, 3 अटैम्प्ट करेंगे मैक्सिमम। तो जिन लोगों ने कल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया है उनको आज मॉक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जिन्होंने कल नहीं किया है मॉक टेस्ट वो आज मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद वो सोल्यूशन देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे और अपने उन एरियाज को नोट डाउन करेंगे जहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं कर पाए या किया तो गलत कर पाए। क्योंकि ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है कि जो बचे हुए दिन है इसमें पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम केवल उन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट कर लेते हैं जहाँ पर हम कमज़ोर हैं तो हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्योंकि कमज़ोर एरिया जो आप कन्वर्ट करते जाओगे स्ट्रॉन्ग एरिया में वो आपके एडिशनल नंबर है और ये नंबर आपको जीत दिलवाएंगे। दूसरी चीज़ समझने की ये है कि क्योंकि आप आरआरबी की तैयारी करते आ रहे थे, वहाँ क्वांट और रीजनिंग की तैयारी कर रहे थे, वो टॉपिक आपके तैयार है। अब इसके अंदर इंग्लिश भी है, तो यदि आप ज़्यादा टाइम इंग्लिश को देंगे तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत काफ़ी वेरिएशन होती है लोगों के अंदर। तो यदि आप आखिरी दिनों में अधिक टाइम इंग्लिश को दे देते हैं तो भी आप और लोगों से आगे निकल सकते हैं। मगर बिल्कुल शांत मन से तैयारी करनी है, ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग अपना काम बिगाड़ लेते हैं कि वो पैनिक ही हो जाते हैं, वो मत होइए। ध्यान से करिए। कोई ऐसा इस बार बहुत ज़्यादा लोगों की परफॉर्मेंस आई नहीं है और पहले से कम ही परफॉर्मेंस है, तो कट ऑफ बहुत रिजनेबल ही रहेंगे। इसलिए उसकी टेंशन छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।